السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت بہترین تلاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، شیطانی نظر سے بچائے، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی پڑھنے والوں میں سے بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر مصباح۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہماری قرآن کی جو تفسیر ہوگی نا، وہ پانچواں پارہ جو رمضان میں ہمارا پانچواں پارہ ہوا تھا نا، اس کو واپس سے ایک بار ہم انشاءاللہ اس کو آج لے کے چلیں گے اللہ ہی کے فضل و کرم سے بہنوں، الحمدللہ۔ اور میری بہنوں سے گزارش ہے کہ سب بہنیں غور و فکر سے انشاءاللہ بیٹھے اور سنیں، الحمدللہ، کیونکہ بولتے ہیں نا ہماری یا تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے تو وہی ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ایک پارے کا خلاصہ تھوڑا سا ہم لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں، الحمدللہ۔ کچھ بہنوں کا بھی تھا کہ مطلب یہ جو پانچواں پارہ ہے اس کو واپس سے ریپیٹ کرنا ہے،
ٹھیک ہے بہنوں، تو انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے نا، یہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم لوگ کوئی کام کر سکے، اللہ چاہے گا تو ہی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ واپس ریپیٹ کریں گے. تو میں دعا کے ساتھ میں کلاس کو شروع کرتی ہوں. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جوڑے ہیں. بہنوں، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے. الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چوتھا پارہ مکمل ہوا تھا. تو چوتھے پارے کا تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے. ایک تو اللہ نے ہم کو کیا کہا کہ ہرگز نہیں تم تقویٰ کو پہنچ سکتے، ہے نا، جب تک کہ تم اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے اس کو ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے پر لگانا ہے. الحمدللہ. پھر اللہ ہم سے کیا فرماتا ہے کہ ہم ایک بن کے رہیں گے، یعنی کہ پورے مسلمان جو ہے وہ ان کو کیسے رہنا ہے، ایک بن کے رہنا، جماعتوں میں فرقوں میں بٹنا نہیں، ایک بن کر رہیں گے. اتحاد. اگر ہم مسلمان ایک بن کر رہیں گے نا تو دشمن کو اتنی طاقت نہیں ملے گی، ہے نا، کہ وہ ہم کو ہرا سکے. تو ہم کو کیا کرنا ہے، ہم سب کو مل جل کر رہنا، انشاءاللہ ایک بن کر رہنا. آج ہم لوگ مسلمان کیونکہ ایک نہیں ہے نا، اسی لیے دشمن جو ہے ہمارے چاروں طرف سے دیکھو وہ ہمارے اوپر کیا ہے، حملہ وار ہے، مسلط ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بتا رہے کہ مسلمان جو ہے وہ کیسے رہو، تم سب ایک بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو. تو ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، ایک بن کر رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور دعا کریں گے، ہے نا، کہ اللہ یہ امت مسلمہ کو سب کو ایک بنا دے، فرقوں میں کوئی نہ بٹے انشاءاللہ. پھر احد کے جنگ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، ہے نا، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. سمجھ جاؤ بہنوں، اگر ہم یہ دو کام نہیں کریں گے تو ہم یہ کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. یہ کام جب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے یہودی اور نصرانی کو جب یہ کام ملا تو وہ لوگوں نے نہیں کیے، ہے نا، وہ لوگوں نے نہیں کیے. ہم بہترین امت ہے نا الحمدللہ، تو ہم یہ کام کو کریں گے انشاءاللہ. یہودی نصرانی نے جب یہ کام کو نہیں کیے تو آج دیکھو کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ہے نا. تو یہ کام ہم کو کیا کرنا ہے، یہ کام کو انشاءاللہ انشاءاللہ کرتے رہنا. اچھائی کا حکم سب دیتے رہیں گے اور برائی سے روکتے رہیں گے. یہ ہمارے نا ہماری زندگی کا مقصد ہم بنا لیں گے. اچھی باتوں کا ہمیشہ ہم دعوت کا کام کریں گے، برائی سے روکیں گے، ہے نا. برائی کو دیکھ کر بھی اس کو اگر برا نہیں سمجھیں گے، ابھی پتا ہے نا ایمان کے 3 درجے ہے، تو برا سمجھنا بھی ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے. بہن، دیکھ کر انسنا نہیں کرنا ہے. سمجھ جاؤ کہ دوائی دیکھو کیا ہوتی ہے، دوائی کڑوی ہوتی ہے نا، اور انجیکشن لگاتے ہیں تو تکلیف بھی ہوتی ہے، چبھتا بھی ہے، لیکن ڈاکٹر کیا بولے گا، نہیں لینا تو پڑے گا ہی بھائی، بھلے دوائی کڑوی ہو، انجیکشن چبھتا ہو، لوگ ہی تو اچھے ہو گئے نا. کیونکہ جب ہم حق کی بات بولتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے. جب ہم بولیں گے سامنے والے کو حق بات تو ظاہر سی باتیں برا لگے گا، پر ہم کو وہاں پہ رکنا نہیں ہے. جیسے ہم نے کسی کو دیکھے اچھے سے بہت پیار سے ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے، تو ہم کیا بولیں گے کہ بھائی دیکھو یہ جو دوپٹہ ہے تم اپنے جسم کو، ہے نا، ہمارا جو سینہ ہے، ایک مسلمان جو ہوتے ہیں ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے سطر کو چھپاتے ہیں، دوپٹے کو مطلب دوپٹے سے اپنے آپ کو ڈھانک لو، چھپا لو، ہے نا، سینے کو کھلا مت رکھو. میوزک سننا حرام ہے، پکچر مت دیکھو، ہے نا، یہ میوزک گانا یہ سب. اب جب یہ ساری باتیں جب بولتے ہیں تو کیا ہوتا، بھاگتے ہیں نا لوگ، برا لگتا ہے. کیا کرتے پتا ہے، حق بات کی دعوت جب دی جائے تو کیا بولے گی، بھائی دیکھ شادی وادی ہمارے گھر میں ہے پر اس کو نہیں بلانا. نہیں تو یہ لیکچر دینا شروع کر دیں، یہ مت کرو، یہ نہیں ہے اسلام میں، یہ نہیں ہے، ارے یہ منع ہے وہ منع ہے. پر ان کو برا لگنے دو، ہے نا.
हमारा क्या काम है, हम बुराई से रोकेंगे इंशाल्लाह, अच्छे से प्यार से, ताना कसी से नहीं, बहुत आराम से अच्छे से। हमारे अंदर है ना बहनों, सब्र और तकवा का होना बहुत जरूरी। फिर क्या देखे थे हमने, मुत्तकी कौन होते उनके बारे में भी जाने थे ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमेशा बचते रहते। तकवे का मतलब ही क्या है, गुनाहों से बचना, है ना, अल्लाह की मोहब्बत में या फिर अल्लाह के खौफ में या फिर अल्लाह की उम्मीद से। फिर सूर्य आल इमरान की आखिरी आयत के बारे में भी हमने पढ़े थे। फिर हमारा जो सूर्य आल इमरान जब मुकम्मल हुआ था तो हमने सूर्य निसा शुरू किए थे। सूर्य निसा में भी हमने क्या जाने थे, यतीमों के बारे में, फिर निकाह के बारे में, विरासत के बारे में, औरतों के हुकूक के बारे में। एक तरीके से हम अगर देखने जाएंगे ना बहनों, अल्लाह हमारी यहाँ पे तरबियत करता है, अखलाक हमको सिखाता है। अल्लाह ताला चाहता है कि हम भी एक मजबूत फैमिली बन जाए ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमको यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरबियत दे रहा है अल्लाह के फजलो करम से, ठीक है। तो ये कल के पार जो हमारा जो चौथा पारा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा एक रिवाइज हो गया कल के पारे का, ठीक है। तो आज जो है ना हम हमारा जो पारा है, ये जो पांचवा पारा इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे अल्लाह के फजलो करम से। और ये पांचवे पारे में जो हमारा रिश्ता है ना, वो किसके साथ है पता है बहनों, मियाँ बीवी का ताल्लुक। जो पूरा एक पारा है ना, यहाँ पे हमको मियाँ बीवी के ताल्लुक के बारे में समझ में आएगा। आज जो हमारा पारा है ना, वल मुहसनातु, वो क्या है बहनों, निकाह वाली औरतें। जो हमारा रिश्ता ताल्लुक क्या है, मियाँ बीवी के साथ। आज जो तिलावत भी हुई ना सूरह निसा की शुरू की आयत, वो वही आयतें है बहन, अगर किसी को याद है तो, है ना, निकाह में ये पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोगों को तो पता ही नहीं ना, हम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते, कहाँ रहते, अल्लाह ही को मालूम है। और ये वही आयतें जो हमारे निकाह के खुतबे में पढ़ते हैं। तो ये जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है ना, ये बहुत बेहतरीन होना चाहिए। देखो बहनों, हर रिश्ता होता है ना कुदरती होता है ना, हम सबको पता है, हर रिश्ता जो है वो कुदरती होता है। हर रिश्ता खून का होता है। लेकिन ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये ऐसा नहीं होता। ये रिश्ता बनाया जाता है दुनिया में, जन्नत में भी साथ रहेंगे, दुनिया में भी। अल्लाह ने फसली का जोड़ा बोलते हैं ना हम लोग इसको, फसली फसली का जोड़ा बोलते हैं ना, हमको मिलाया है ना। तो ये फसली का जोड़ा जो हमको मिला है ना बहनों, सिर्फ यही एक वाहिद रिश्ता बहनों जो टूट जाता है। बाकी कोई रिश्ता टूटता नहीं है, बाकी कोई रिश्ता टूटता नहीं, लेकिन ये रिश्ता जो है वो टूट जाता है। कैसे टूट जाता है ना, तलाक के जरिए से, खुला के जरिए से, या तो कुछ ऐसा होगा कि सालों साल दूरियां हो जाती है, मिलाप नहीं होता है। तो सोच के देखो बहनों, ये रिश्ता कितना अहम है, क्योंकि कल जन्नत में भी यही रिश्ता साथ में रहेगा ना, जोड़े जोड़े बन के अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिश्ते के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आज हम यहाँ पे, जहाँ पे अल्लाह ताला हमको सूरह निसा आयत नंबर 24 में बता रहा है। 24 में अल्लाह ताला बताते हैं कि निकाह वाली औरतें कैसी होनी चाहिए। निकाह वाली औरतें कैसी होनी चाहिए, पाक दामन होनी चाहिए, नेक सोच वाली होनी चाहिए। देखो यहाँ पे है ना, हर बात है ना, हम क्या करेंगे, हम अपने ऊपर लेंगे कि मैं मतलब मैं मेरे मेरे ऊपर लूंगी। मुझे देखना है ना, निकाह की जो बुनियाद है वो क्या है, मेन उस पे हम जाने की जो जड़ है बहनों, अच्छे अमाल करने वाली हो, मुसलमान होना चाहिए, हाँ, बाहया होना चाहिए, शरीफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छे अखलाक वाली होनी चाहिए, फहश से दूर होना चाहिए। जो छुप छुप के दोस्ती करते हैं ना, खुफिया तरीके से दोस्ती, तो ये सब से परहेज करना चाहिए। देखो ना, जैसा कि जो शौहर की बात है ना, जो शौहरों के काम की बात, जैसा कि जो काम हमारे शौहर को नहीं पसंद है वो काम हमको नहीं करना है। शौहर लोग जो करते हैं उसमें बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ औरतें के बारे में पहले हम जान लेंगे कि औरतों को जो है वो कैसे होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं ना, कितनी औरतें क्या करती पता है, आजकल तो चैट निकला है, एक ऐप भी ऐसा निकला है कि मतलब कि गैर मर्दों से बस क्या बोलते हैं, बस दोस्त है, दिल गमगीन होता है, दुख में थे, तो फिर बस एक बातचीत कर रहे हैं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस बातचीत कर रहे हैं। जबकि हमारा इस्लाम इतना माशाल्लाह खूबसूरत हमारा मजहब है, हमको क्या सिखाता है कि औरतें जो है छुप के भी वो किसी से गैर मर्द से जो है बात नहीं कर सकती ना, जो छुपी हुई दोस्ती होती है ना वो नहीं रखना। यानी बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं ना, जैसे कि अभी देखो कजिन, या फिर कजिन होते हैं, या फिर ऐसे भी दोस्त होते हैं ना जो स्कूल के होते हैं, कॉलेज के होते हैं,
جن سے बातचीत करते हैं, घंटों घंटों फोनों में बात करते लगे पड़े. ऐसी छुपी हुई दोस्ती इस्लाम में जायज नहीं है. ये बात को हमको हमेशा याद रखना है. देखो कितना भी सुनते हैं ना, तो कुछ कितनी सारी बातें क्या होता है पता है, भूल जाते हैं. हम इंसान है ना, याद नहीं रहता, भूल जाते. तो हमको याद रखना है कि इस्लाम में ये जायज नहीं है, क्योंकि वो हमारे नामहरीम है ना. चलो सलाम दुआ बस एक हद हद तक बातचीत करे तो समझ में भी आता है. छुप छुप के बात करना, हाँ, बहुत देर तक बात करना, ये इस्लाम में मना है. और पता है ना बहनों क्या हो रहा है, जब भी औरत किसी गैर मर्द को दोस्त बना के उससे बातचीत करते 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 वो इतने हद पार होते कि तलाके हो रहे. बहन, ये ऐसे बहुत सारे किस्से जो रियल में हकीकत में ऐसा हो रहा है कि चैटिंग की वजह से अच्छे अच्छे घर क्या हो गए, बर्बाद हो. और फिर मंगनी के नाम पे तो पता है ना, मंगनी कर देते हैं. आजकल तो ये भी हो रहा है, मंगनी के क्या कहते हैं, मंगेतर. अब मंगेतर हो गया तो घंटों घंटों बातें तो हो रही. क्या, अरे उसका मंगेतर है, उसी से उसका उसकी शादी निकाह होने वाली है. फिर घूम रहे हैं, घूमना फिरना. जबकि निकाह की बुनियाद बहुत जरूरी है. निकाह बहुत जरूरी है आज के जमाने में, है क्या नहीं है. निकाह बहुत, निकाह करना चाहिए. यहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रहने को नापसंद करते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा से निकाह के बारे में ही हौसला अफजाई करे. हदीस भी आती है ना कि निकाह नहीं करने वाला हम में से नहीं है. तो ये चीज बहुत है इस्लाम में, क्योंकि अल्लाह क्या चाहता है, एक पाक सोसाइटी हो, है ना, एक पाक माशिरा हो. हम लोग अगर आज देखेंगे ना, निकाह हमने बहुत मुश्किल, हमारे लिए आज हम देख रहे उम्मत का हाल कि निकाह को मुश्किल बना दी और जीना आम हो चुका है. ठीक है बहनों, तो ये हमारा जो टॉपिक होगा ना थोड़ा सीरियस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा. आप लोग गौर फिक्र से सुनना इंशाल्लाह. ठीक है. और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हम है ना ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं ना, ख्वाहिशात के पीछे जो जाते हैं. जबकि बार बार आता है कि ख्वाहिशात की पैरवी मत करो. जब हक आ चुका है, हाँ, तो हक के रास्ते पे चलो. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, और इस वजह से हम बड़े बड़े गुनाह तक चले जाते हैं और हमारी मत मारी चली जाती है. मैं एक मिसाल से बताती हूँ बहनों, समझ जाओ कि देखो हमारे जो बच्चे होते हैं ना, अब बच्चे हैं लड़का लड़की, तो जाहिर सी बात है कॉलेज पढ़ते हैं, आजकल तो जॉब भी कर रहे हैं लड़का लड़कियां. क्या हो रहा है, अब लड़का लड़की दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं ना, फिर उनका घूमना फिरना होता है, एक दूसरे को लोग पसंद करते हैं. फिर लड़की है या लड़का जो भी अपने घर में आके बताते हैं, है ना, मुसलमान के अम्मी ऐसा ऐसा एक लड़की है या लड़का है, मुसलमान है, मैं उसको पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ. हाँ, वो हो सकता है कि वो लड़की है तो वो मुझे पसंद करती है, या लड़का है तो वो मुझे पसंद करता है, दोनों मुसलमान हैं, अच्छे हैं. अगर बच्चे आके बता रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जाए, तहकीक करे. लेकिन क्या करते, माँ बाप कुछ ऐसे होते हैं जो वहीं पे चिल्लाना शुरू करते हैं, अरे पागल हो गई है तू, क्या मतलब इतनी कितना बेशरम हो गया है तू, तेरी ये उम्र अभी है क्या, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या, हम लोग तेरी उम्र में कैसे थे, हाँ तू ऐसा है वैसा है. हाँ, क्या करते हैं, इस तरह से बोल के रोक देते हैं. कुछ माँ बाप होते हैं वो गहराई में जाते नहीं कि बच्चा मेरा आके क्या कह रहा है, मेरी बेटी मुझे आके क्या समझाना चाह रही है, मेरा बेटा क्या कह रहा है. आज का दौर माहौल देखो बहनों, क्या हो रहा है, वहीं पे चिल्लाना, पढ़ने लिखने की उम्र है, ये सब बेहयाई के कामें कर रहे हो, ऐसा वैसा करके वहां पे रोक देते हैं. बच्चे भी फिर एकदम सहम जाते हैं. और कुछ माँ बाप इतने अक्लमंद होते हैं, क्या करते, सुनते बच्चों की बात को, फिर जाते सामने वाले के पास, उससे बातचीत करते. फिर बातचीत करते तो दोनों की फैमिली मिलती है, बातचीत से अच्छा लगता है, समझ में आते एक दूसरे को, है ना. फिर वहां बात होती है कैसे निकाह करना है, फिर निकाह की बात होती, फिक्स होता है. फिर क्या होता है बहनों, निकाह हो जाता है ना, एक मस्जिद में जाते, दोनों वली, दोनों के घर वाले मिलते हैं. वहां पे कुछ लोग यहाँ से कुछ लोग वहां से आते हैं, निकाह हो जाता है, खजूर खा लेते हैं, निकाह होता है, खजूर खा लिए, फिर अपने अपने घर चले गए. अपने हिसाब के एतबार से वलीमा कर लेते, जितनी अपनी इस्तेताअत है, भले खजूर का ही क्यों ना हो. बस अल्हम्दुलिल्लाह. अभी देखो वो जमाने में बहनों वलीमा होता था, सिर्फ आइसक्रीम में भी वलीमा हो जाता था. मगर कुछ लोग मतलब इतने गरीब होते थे, इस्तिताअत नहीं होती तो आइसक्रीम खिलाते थे, पर हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह. यानी बताने का मकसद ये कि हलाल रिश्ते बनते थे ना, जायज काम होता था, और सोसाइटी भी कितनी पाक हो जाती थी. अब क्या हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है.
बच्चों को कहते हैं कि नहीं, पढ़ो 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 भाई, अभी डिग्री हासिल करना है, अभी उम्र बाकी है, अभी कोई उम्र है क्या शादी करने की। हुनर सीखो, फिर उसके बाद में देखेंगे, अपने पैरों पे खड़े हो, खुद कमाओ, अपना घर बनाओ, अपना कमाओ जमाओ, फिर शादी करो। अब वो लड़के की उम्र कहाँ तक पहुंचती है सोचो। हाँ, 25-30 साल के हो जाते हैं। अब सोचो बहनों, जब बच्चे की उम्र बढ़ रही है, लड़का हो या लड़की हो, जब उम्र बढ़ती है, तो हमको क्या लगता है कि वो जो लड़का है जिसको बोले भाई तुझे भी और पढ़ना है पढ़ना है। देखो बहुत से लड़के हैं ना, शर्म से नहीं बताते। और बहुत से ऐसे होते हैं जो मुंह खोल के बोलते हैं कि भाई हमारा निकाह कराओ। तो माँ बाप क्या बोलते हैं, तेरी कमाई इतनी कम है, कैसा हम कराएंगे। नहीं, बिस्मिल्लाह, निकाह में बरकत है, बिस्मिल्लाह करो। क्योंकि माहौल इतना खराब चल रहा है, आज का दौर इतना खराब है, बच्चा जीने में अगर पड़ गया नाजायज काम में, तो उसका गुने का हिस्सेदार कौन होंगे, माँ बाप होंगे। अब सोचो उम्र उसकी बढ़ रही है, तो हमको क्या लगता है, लड़का क्या रात भर जाग कर तहज्जुद पढ़ रहा होगा, क्या वो लड़की रात भर जाग के तहज्जुद पढ़ रही होगी। देखो बहनों, अल्लाह ने, बोलते हैं ना, अल्लाह ने पैदा ही किया ऐसा कि जब माँ का बच्चा दूध पीते हैं ना, जरा सा फिर दांत आता है तो बच्चा क्या माँ के दूध के ऊपर ही रहता है, नहीं ना, वो बच्चे की भी, वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी खुराक भी तो बढ़ती है। वैसे ही अल्लाह ने एक रूह को रखा है, एक जिस्म को रखा है अंदर। एक अल्लाह ने, बोलते हैं ना, जिस्म है, तो जिस्म के अंदर एक अल्लाह, बोलते हैं ना, अल्लाह ने एक हार्मोन्स रखे, एक इमोशन रखे, और ये भी बढ़ता रहता है। तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, सोच के देखो, कहाँ से पूरा करेगा। अगर हम जायज तरीका नहीं रखते हैं तो वो बच्चे फिर क्या करते हैं, नाजायज तरीका करते हैं। फिर क्या होगा, आजकल का माहौल हम सब जानते हैं ना, मुझे कुछ ऐसा खोल के बताने की जरूरत भी नहीं, सबको पता है कि आज के दौर में क्या हो रहा है। जब देखते माँ बाप चिल्ला रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या होगा बहन। ये शरीयत है ना, शरीयत, अगर हम शरीयत के हिसाब से नहीं चलेते हैं, शरीयत पर तो निकाह है, शरीयत के हिसाब से चलना है ना, अगर नहीं चले तो क्या। अब शरीयत पे क्या है, निकाह है, मेहर है, घर को बसाओ, खुशी से खर्च करो, है ना, उसमें हिफाजत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक पाक माहौल होता है। सोचो बहनों, कितना बेहतरीन हमारा इस्लाम है ना, हलाल तरीका सिखाता है। अल्लाह ताला आसानी को पसंद करता है। और अगर हम ये कामों से रुक जाते हैं, तो वो बच्चे फिर किस तरफ जाएंगे, सोच के देखो। शरीयत को छोड़कर शहवत की तरफ चले जाएंगे, और फिर वो ख्वाहिशात की तरफ जब चले जाते हैं, ख्वाहिशात कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, कितना मतलब, आज जो ऐसा बुरा माहौल चल रहा है, जो लड़का लड़की होते हैं वो क्या करते हैं, या तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, कॉर्ड मैरिज कर लेते हैं, या फिर जीना करते हैं, या फोनों पे लगे पड़े रहते हैं, है ना, या फिर मिल के बदकारियां करते हैं, होटल के रूम में जाते हैं। होता है क्या, नहीं होता बहनों, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लेबल तो लगा है, लग रहा है, ये सब हो रहा है। देखो ना बहनों, हमने वो बच्चे को पहले से ही, ये सब अच्छा क्यों होता है, क्योंकि हमने वो बच्चे को पहले से दीन से नहीं जोड़े ना, वो माहौल, वो चीज, वो तरबियत नहीं दी, इसीलिए उनका ईमान कमजोर है, वो दीन से दूर है। और आज ऐसा बुरा माहौल हो चुका है कि बदकारियां हो रही है, हराम काम आम हो चुका है, बेहयाई आम हो चुकी। आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया और शैतान के रास्ते पर हम चल रहे। लोग फर्ज, बोलते हैं ना, लोग जो है कर्ज लेकर शादी करते, बेफजूल खर्च, महंगे महंगे कपड़े खरीदते, ऐसे कपड़े खरीदते जो दोबारा नहीं पहन सकते। शादी के एक दिन के लिए वो कपड़ा लाखों हजारों का, वो रुपए का कपड़ा होता है बहन, जो खर्च किया जाता है शादी में सिर्फ एक दिन के लिए। फिर एक एक दिन की शादी हो गई, जबकि वो उसकी तैयारी महीनों महीनों चलते रहती है, और वो कपड़े वैसे ही पड़े, फिर दोबारा पहनने में नहीं आते। और शादी की तैयारी ऐसी करते हैं, कुरान के ला छोड़ देते। तो ये सब किसके रास्ते है, शैतान के रास्ते। जो फर्ज है वो नहीं करते, लेकिन शादी में बेफजूल खर्च करने के लिए सोचो, कर्ज तक लेते हैं बहनों, कर्ज ले रहे हैं, जेवरों को बेच रहे हैं, सिर्फ शादियों में खर्च करने के लिए। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है, सोच के देखो ना। एक सुन्नत आसान है, उसको मुश्किल कर कर फजूल खर्च करते, और जो हज, जो फर्ज है, उसको पीछे छोड़ देते। हम सब ये दलदलों में फंस चुके हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, माल का नुकसान, जान का नुकसान, वक्त का नुकसान। हमको क्या करना है बहन, हम क्या करेंगे पता है, अल्लाह को राजी करे कि या अल्लाह, हम सब यहाँ पर बैठे हैं ना बहनों, तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह,
दिल से दुआ करे कि या अल्लाह तू हम सबको शरीयत पे चलने वालों में से बना दे, या अल्लाह तू हम सबको सुन्नत तरीके से हर काम करने वाला बना, या अल्लाह ख्वाहिश परस है ना, हम हो चुके हैं अल्लाह, हम ख्वाहिश परस हो चुके हैं अल्लाह, या अल्लाह तू हमको इससे तू बचा ले, या अल्लाह तू हमको हमारी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने वाला बना दे। आमीन 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह से बहुत दुआएं करेंगे बहनों। जो माहौल हमारा चल रहा है ना, ये माहौल देखो ना, कुरान एक एक पारे का खुलासा हो रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, 5वें पारे का। तो इसमें अल्लाह हमको पूरा बता रहे, डिटेल में बता रहे बहनों, गौर व फिक्र करेंगे। फिर उसके बाद में देखो ना बहनों, 3 चीजें है ना, 3 चीजों से दूर रहना चाहिए हमको। एक माल से, दूसरा शोहरत से, तीसरा मर्दों से। जितना औरत दूर रहेगी ना ये 3 चीज से, जितना औरत जो है वो दूर रहेगी उतना महफूज रहेगी। यानी माल के पीछे नहीं भागना, शोहरत के पीछे नहीं भागना है, जो भी नामहरीम है ना उनसे हम दूर रहेंगे। तो जितना हम ये 3 चीजों से दूर रहेंगे उतना हम हिफाजत में रहेंगे। दीन के काम करने वालों को मेन खास बताया जा रहा है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। अगर हम होते ना, अगर हमारा मतलूब ये है कि मुझे माल मिले, लोग मुझे पैसा दे, तो मैं दिन का काम करूंगी, तो ये गलत है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं दिन का काम कर रही हूँ ताकि मुझे शोहरत मिले, मेरा नाम हो, लोग वाहवाही करे, तो ये भी गलत रास्ता है। अगर मैं दिन का काम कर रही हूँ तो मर्दों के साथ मिल मिल कर, तो ये भी क्या है, गलत है। तो ये 3 चीज से हमको बचना है। देखो बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ना अ, बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर क्या करे, एक मैदान में चले गए और वहां पे दुआ किए बारिश के लिए। तो अल्लाह ने कहा था कि तुम्हारी कौम में से एक गुनहगार है, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो कौन गुनहगार है अल्लाह। अल्लाह ताला ने जब कहा ना कि तुम्हारी कौम में कोई गुनहगार है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि वो कौन गुनहगार है, यहाँ से निकल के चले जाओ, क्योंकि उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो वो जो गुनहगार इंसान था वो वहां से देखो हट कर नहीं गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं हट गया तो सबको पता चलेगा कि मैं ही वो गुनहगार हूँ और मेरी ही वजह से ये सारी चीजें होगी। तो उसने क्या किया, दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगी, तौबा किया, तो अल्लाह ने क्या किए, बारिश को बरसा दिया। हाँ, दिल में ही माफी मांगा, वहां से वो हटा नहीं, अल्लाह ने बारिश को बरसाया। तो जैसे ही बारिश बरसने लगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, तूने तो कहा था कि मेरी कौम से कोई गुनहगार है, अभी वो गुनहगार तो यहाँ से हटा भी नहीं, और तूने बारिश को बरसा दिया। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदे ने मुझसे माफी मांग ली, है ना, माफी मांग ली और मैंने उसको माफ भी कर दिया। सुभान अल्लाह। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह वो कौन है, क्या नाम है। तो अल्लाह ने कहा कि जब वो नाफरमान था तब मैंने उसका नाम, उसके नाम को जाहिर नहीं किया, अब तो वो मेरा दोस्त बन चुका है, अब तो वो मेरा अपना बन चुका है, तो मैं उसका नाम कैसे बताऊं। तो यहाँ पर ये महफिल में बैठे हैं ना हम लोग आके बहनों, हाँ, तो हमको क्या सोचना है कि इस महफिल में हम बैठे हैं, किसी को नहीं पता कि हम कितने गुनहगार हैं। हो सकता है कि हमारे वजह से वो रहमत जो रहमत उतरने वाली, वो रहमत नहीं उतर रही, वो बरकत नहीं उतर रही। तो बहना हम भी अल्लाह से दिल से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, मैं ही हूँ वो खताकार, वो सियाकार, या अल्लाह मेरे गुनाहों को तू माफ कर दे, है ना। देखो कैसे वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के शख्स ने अल्लाह से सच्चे दिल से, आंसू उसके आंख के अंदर ही है, वो टपके भी नहीं है, सिर्फ नम होता है ना, नम, एक आंख में पानी भर जाता है, वीरे ने दिल से माफी मांगा, अल्लाह ने बारिश को बरसा दिया, है ना। तो हम अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि या अल्लाह तू तेरी रहमत, तेरी बरकत को तू उतार दे, है ना, इस उम्मत पर अल्लाह तू रहम फरमा दे। आमीन 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 अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं सूरह निसा आयत नंबर 34 में, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है मर्द जो है ना वो कव्वामीन है, यानी वो जिम्मेदार है, किसका, औरत का, है ना। औरत और मर्द को अल्लाह ने बराबर रखा है बहन। कोई मतलब कि इबादत में, कोई भी इबादत में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मर्द को ज्यादा औरत को कम, नहीं। इबादत में हम सब एक है, बस इतना है कि मर्द को एक दर्जा हमसे ज्यादा दिया है, और वो भी किस में, जिम्मेदारी में, है ना। मर्द क्या है, वो हाकिम है हमारा, वो जिम्मेदार है बहन हमारे ऊपर, इसीलिए अल्लाह ने एक दर्जा ज्यादा दिया है। सुबह में उठते हैं वो
बाहर जाके काम करते, कितने लोगों का उनको सामना करना पड़ता है ना। हम तो घर में रहते, खाना, बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है तो खाना वगैरह गर्म करके खाते। ये जो मर्द हमारे घर के होते हैं, वो बेचारे जब घर से निकलते हैं तो उनको ठंडा ठंडा खाना खाना पड़ता है ना। कैसे कैसे मतलब बाहर उनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता, तो वो जो मेहनत है वो किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो इनका दर्जा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। यानी कि यानी अल्लाह ने उनको अगर एक दर्जा दिया है तो वो हमको संभालने के लिए दिया है। हमारा वो काम नहीं है कि हम काम करने जाए और घर को चलाए, नहीं बहन। अल्लाह ने हमको ये सब चीजों से बेनियाज कर दिया, सुभान अल्लाह। ये सूर्य निसा जो है, ये अल्लाह ताला औरतों के ही बारे में पूरा एक और सूरा उतार के बता दिया। औरतों के हक हुकूक को अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने नहीं कहा कि औरत जो है घर घर छोड़ के जाए और काम वगैरह करे, बेनियाज कर दिया। इसीलिए एक दर्जा ऊपर है ना शौहर का। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ने कितना बेहतरीन ताल्लुक रखा है, कि एक को एक का दर्जा रखा ताकि दोनों मिलजुल कर घर को चले। अगर दोनों ऐसे ही होते, दोनों क्या करते, झगड़ा करते ना। वो कहता है कि आप, तुम्हारा दर्जा बढ़ा है तो मैं भी तो बराबर हूँ तुम्हारे। मियाँ बीवी अगर सेम होते तो कितने झगड़े होते ना। वो कहता मैं तुम्हारी की सुने, वो कहती मैं तुम्हारा। आज तो यही तो दौर चल रहा है बहन। शौहर मियाँ बीवी का दर्जा अल्लाह ने एक ऊंचा रखा है, लेकिन आज जो माहौल चल रहा है, क्या कहते हैं कि बराबर। मैं खाना बना रही थी, तुम दस्तरखान बिछाओ, खाना रखो, मैं ये कर रही थी, तुम वो करो, मतलब बराबर का लेके चलते। अल्लाह कहता है कि नहीं, शौहर का दर्जा, क्योंकि वो हमारा अल्लाह ने लीडर बनाया है ना। और मशवरे में बरकत है। हम हमेशा अपने घर को, हमारे जो शौहर है, हमारे हाकिम है, हम उनको लेकर चलेंगे, उनके मशवरे से चलेंगे तो ही घर चलेगा बहन। बराबर नहीं, तू मेरी सुन, तू मेरी सुन, इसमें तो फिर झगड़े कितने होंगे। जैसे कि मिसाल से देखो, मैं बताती हूँ, मर्द जो होता है ना बहनों, टेबल के मानिंद, जो हमारे घर में टेबल होता है ना उसके मानिंद होता है। और औरत जो है ना, वो एक चेयर के मानिंद होती है, एक कुर्सी के मानिंद। जैसे टेबल और कुर्सी दोनों जोड़े है ना, जोड़ी है ना, टेबल कुर्सी के बगैर कुछ नहीं, कुर्सी टेबल के बगैर कुछ नहीं। टेबल थोड़ा वजन होता है ना। और चेयर, कुर्सी थोड़ी नरम होती है। कुर्सी ज्यादा काम करती है, टेबल ठीक है काम करता है, नहीं करके नहीं, मगर टेबल की भी जरूरत है। टेबल थोड़ा ऊपर होता है, कुर्सी थोड़ी नीचे होती है। और टेबल जो है उसकी चलती भी है, क्योंकि वो ऊपर होता है थोड़ा सा। तो ऐसे ही हमको चलना है बहन। ये ताल्लुक जो है ना, हमेशा याद रहे कि एक दूसरे के बगैर हम कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को हमको लेकर चलना है, एक दूसरे की हमको कदर करें इंशाल्लाह। हम एक दूसरे का क्या करें, शुक्र अदा करें। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर एक औरत को कैसी होना चाहिए, वो भी अल्लाह हमको यहाँ पे बताते रहे। नेक बनना है, फर्माबरदार होना है, शौहर के गैर मौजूदगी में हिफाजत करना है, अपने जिस्म की, अपने घर की, अपने बच्चों की, और अपने माल की, है ना। शौहर अगर कहता है कि फला से बात मत करो, दोस्त, है ना, वो फला से बात मत करो, वो दोस्त है, ना महरिम है, हमको मतलब जैसा कि शौहर ने कह दिया बात मत करो, खत्म। वो मेरे कॉलेज का दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है ना, वो मेरा कजिन है, वो मेरा फला है। बिल्कुल भी उसमें हमको बहसबाजी नहीं करना है। कह दिया नहीं करना, बात खत्म, हम नहीं करेंगे। देखो ये जो सूर्य निसा है ना, इसमें अल्लाह ताला जो है ना हमको वसीहत, शरीयत, ये सब आता है बहन। इसके अलावा महरम कौन है, ना महरम कौन है, उसके बारे में भी अल्लाह ताला हमको बताता है। कौन हमारा महरिम है, कौन हमारा ना महरिम। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है ना बहनों, है ना। अल्लाह ने महरम जैसे एक रिश्ता बनाया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, जिससे हमारा निकाह, बोलते हैं ना, आराम है। जैसा कि हमारे अब्बा हो गए और फिर हमारे भाई हो गए, ये हमारे महरिम है, हमारे शौहर हमारे महरिम है, हमारा बेटा, फिर हमारे भाई के बच्चे, फिर बहन के बच्चे, है ना, ये महरिम है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ना, अल्लाह ने अल्लाह ताला महरिम जैसी चीज को नहीं रखता तो हम लोग आराम से नहीं रह पाते बहन। कितनी बार ऐसा होता है ना, कहीं बाहर जाना होता है, कितनी बार ऐसा होता है बहन, हॉस्पिटल चले गए, कोई भी काम से बाहर जाते, अभी शौहर है हमारा महरिम है, हम बेफिक्र हो के हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को उनके पास छोड़कर जा सकते, भाई है, बेटा है ना, भाई है तो बहन को छोड़ के जा सकते। कितना मतलब बेसुकून होके कि नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्ची है तो मेरा भाई, बेटा है ना घर पे, उसका भाई है, उसके अब्बा है। अल्लाह ना करे ये महरिम जैसी चीज नहीं होती तो हम, वो सोचो ना, छोड़कर जा सकते, नहीं जा सकते। अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो
تو اللہ کا کتنا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے محرم نامحرم جیسی چیز بنائی بہن. دیکھو نا، غیروں مطلب کیسا ہے کہ غیر ذات میں یہ سب نہیں ہے. بھائی بہن غلط تعلق کر رہے. آج پورے ملک میں ایسے 2 یا 3 جگہ ہے جہاں پہ بھائی بہن کی شادی کو جائز قرار دیا گیا، نعوذ باللہ. تو اللہ کا بہت احسان اور کرم ہے کہ یہ بھائی بہن کے رشتے کو اللہ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاک رکھا ہے. ہمارا مذہب اتنا بہترین مذہب ہے بہن. دیکھو نا جا کے کیا کیا ہو رہا ہے. ہمارا جو اسلام ہے وہ کتنا بہترین ہے ماشاءاللہ. ہمارا مذہب الحمدللہ شراب سے دور رکھا، کیونکہ اکثر نشے کی حالت میں لوگ غلط کام کرتے. باپ بیٹی کو نہیں دیکھتا، بہن کو بولتے ہیں نا، بہن کو نہیں دیکھتا. اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے. اللہ نے نشے کو حرام کر دیا، شراب کو حرام کر دیا. ورنہ ہم بولتے ہیں نا، ورنہ ہم بھی کیا ہوتے بہن، کہیں نہ کہیں حفاظت میں نہیں ہوتے. الحمدللہ. تو ہم بہت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تو نے اتنا پیارے مذہب میں ہم کو ہم کو دیا، اتنا بہترین مذہب. اللہ تیرا جتنا ہم شکر ادا کرے اتنا کم. اسی طرح بہنوں، عورت جو ہے نا وہ نافرمانی نہیں کرے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا، کچھ عورتیں دیکھو نا، کیا ہوتا ہے پتہ ہے، کتنی عورتیں دیکھو بگڑ بھی جاتی ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے نا، غلط چکروں میں پڑ جاتی ہے، فحش کام کر لیتی. شیطان بہکا دیتا ہے نا تو ہو جاتا ہے. تو ایسی عورتیں قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں جو فحش کاموں میں مبتلا ہو چکے. تو اس وقت میں اس کا شوہر کیا کرنا چاہیے، اس کے شوہر کو پہلے تو پتا چلے کہ بھائی میری بیوی جو ہے کسی کے چکر میں پڑ گئی ہے یا فحش کام کر رہی ہے. تو وہ کیا کرے، پیار سے اس کو سمجھائے، اس کو نصیحت کرے. اگر وہ مانتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مان رہی ہے تو پھر اپنے بستر کو کیا کرے، پہلے تو نصیحت پیار سے سمجھائے، ہے نا. مانی تو الحمدللہ. اگر وہ نہیں مانتی ہے تو پھر بستر کو الگ کرو. پھر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو اس کو مسواک سے ہلکے سے تم اس کو مار سکتے ہو. مسواک، ہاں مسواک، سوچو مسواک کا کیا مار ہوگا. اور یہ کون سی عورت کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں جو فحش کام کرتی. سوچو آج تو ہم دیکھتے ہیں مرد تو نمک کم ہے تھوڑے، کوئی چیز میں کمی ہے، کبھی بچے کو سنبھالنے کرنے میں کچھ کمی آ گئے. ہاں تو اتنا مطلب سوچو نا، کتنا لے مارنا چالو. یا کوئی گھر میں کسی بات سے جھگڑا ہو جائے یا تھوڑی زور سے عورت بول دے تو پھر مارنا شروع ہو جاتا ہے. یا کبھی شوہر کی جو ماں نے کچھ بتا دی کہ بھائی تیری بیوی دیکھ ایسا ویسا میرے ساتھ میں منہ چلائے، تو مارنا شروع ہو جاتا. مطلب پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. یہاں دیکھو اللہ کیا کہہ رہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کون سی عورت کو مارنے کا جو فحش کام کر رہی تھی، وہ بھی مسواک سے ہلکا سا. زنا کرنے والی کو ہلکا سا مارنے کا تھا. تو جو آدمی اپنا گھر بچانا چاہتا ہے نا، اس کو، کیونکہ وہ رکھنا چاہتا ہے نا، وہ ماحول اپنے گھر کا سب سدھارنا وہ نہیں چاہتا، وہ سدھارنا چاہتا ہے، وہ طلاق دینا نہیں چاہ رہا ہے. وہ نہیں چاہتا اس کو چھوڑنا، کیونکہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچے، فکر ہے. اسی لیے وہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ عورت گھر میں ہی رہے. تو تو ایسے وقت میں وہ پیار سے سمجھائے. پھر بھی نہیں سمجھے تو بستر کو الگ کر دے. پھر بھی نہیں سمجھے تو مسواک سے مارے. اور مارے بھی تو اس کے چہرے پہ نہیں مارو. سبحان اللہ، الحمدللہ. سوچو دیکھو، مارنے کے لیے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا. کیونکہ دیکھو ہمارے نبی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیویاں تھے، کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے نا. ہم نے کبھی بھی سیرت پہ کبھی ایسا کوئی چیز سنی نہیں. الحمدللہ اتنے رحیم اور کریم تھے اللہ کے نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ بہت مطلب بہت بہترین. ہم جب اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اخلاق جو تھے بہت بہترین اخلاق تھے ماشاءاللہ. اب اللہ کے راستے پہ چلنا ہے بہن. اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے رہے اور اللہ کے راستے پہ چلتے رہے. اللہ نے بتا دیا. پھر دیکھو یہ آیت سورہ النساء آیت نمبر 118 میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بتاتے. قرآن کلاس میں دیکھو برابر سے آ رہے اور اپنے گھر پہ بھی برابر سے چل رہے. اب مطلب جیسے کہ قرآن کلاس میں برابر آ رہے، اپنے گھر کو بھی برابر سے لے کے چل رہے، اپنے شوہر کا بھی حق ادا کر رہے ہیں نا، بچوں کو بھی لے کر چل رہے ہیں نا. تو بہنوں اب شیطان تو ہے ہی سیدھے راستے سے پریشان کرنے والا، آ کے وہ راستے پہ کھڑا ہی ہو جائے گا، ہے نا. اس کے اوپر تو دیکھو اللہ کی لعنت ہے. شیطان نے تو مطلب زیادہ تر بندوں کو بہکا دیا. اور کیسے بہکا رہا ہے، ہاں؟ کیسے بہکا رہا ہے بہنوں. تو اللہ ہم کو یہاں پہ بتا رہے بہکا رہا ایسا کر دیا ہے. تو شیطان کی چالوں سے بھی ہم کو کیا کرنا ہے، بچنا ہے. اکثریت
जो है ना वो उसके पीछे जा रहे, अक्सरियत उसके चाल से बहक रहे बहनों। शैतान की जो चाल है ना उससे क्या कर रहे हैं, वो बहक रहे। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जो मेरे नेक बंदे हैं, जो शुक्रगुजार है, वो तेरे बहकावे में नहीं आए। तो हमेशा याद रखना बहनों, हमेशा याद रखना, ना शुक्री हमारे अंदर ना हो, शैतान की चाल से हमें बचना है। क्योंकि शैतान ने तो वादा लिया ना कि मैं तेरे बहुत सारे बंदों को बहकाऊंगा। ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है ना, उसको कैसे वो बहका रहा है। पहले तो झूठी उम्मीद, हाँ, और लंबी लंबी आरजू डालता है। जैसे कि कैसा कैसा डालता है देखो, अरे मेरे मेरे तो अरमान है, मेरे तो आरजू है, मेरे बच्चे की शादी होगी ना, मैं तो बैंड बाजा डीजे ये सब रखूंगी, फूल, इतने सारे फूल, सहरा, मैं तो मेरे बच्चे का सहरा देखना चाहती हूँ। देखो ना बहनों, इस्लाम इतना प्यारा मजहब है। दहेज का नामो निशान है, कोई दहेज नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं ना जहाँ पर यहाँ ये सब हो रहा है। हाँ, क्या बोलते हैं, अरे देखो शैतान के जो एक के बाद एक, पहले तो आरजू अरमानों में डाल के वो क्या करेगा कि मुझे तो डीजे लगाना है, मुझे तो फला करना है, पता नहीं कि कौन से अरमान जाग जाते बेटों के, बेटे और बेटी की शादी में। फिर क्या कहेंगे, मेरा बेटा इंजीनियर है, हमने उसको इतना हुनर सीखा, इतना पढ़ा है। अरे जो भी आप लोग दोगे ना, खुशी से दोगे ना, आपकी बेटी को ही देने वाले हो, हम तो नहीं ले रहे। जबकि लेने देने का कोई मामला हम मतलब है ही नहीं। सोचो ये कौन सा इस्लाम है, कहाँ से ये हम नई नई बातें लेकर आ रहे हैं। अभी तो बहुत ज्यादा दिन फैल गया है, शायद बोलते हैं ना कम हो गया होगा ये दहेज, ये लेन देन की बातें, लेकिन कहीं ना कहीं चल भी रहा है बहन। शैतान क्या करता है देखो ना, हमको खुल्लम खुल्ला गुमराही की तरफ लेके चला रहा है। हम्म, गुमराही के रास्ते पे लेके जाता है। फिर क्या करता है, जैसे कोई टीवी देख रहे, म्यूजिक है बहनों, क्या करते हैं, खुद तो देखते हैं और दूसरों को भी दावत देते हैं। अरे पता है फला पिक्चर इतनी अच्छी थी, तू देखी या तू देखा, नहीं तो देखना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, एकदम स्टार्टिंग से देखना। सोचो बहन, खुद भी गुनाह करते हैं और दूसरों को भी दावत देते, बेहयाई, बेपर्दगी, और ये सब क्या है, ये सब शैतान करता है। हर हरकत हम लोग करते हैं, शैतान बोलते हैं ना, शैतान जो है गलत कामों में मुब्तिला कर देता है, गुनाह में डाल देता है, और हम लोग बराबर वहां पे चलते, पता नहीं चलता हमको, वो ऐसे गुनाह के गलत कामों में मुब्तिला कर देता है। कौन सी रात बड़ी है, कौन सी रात छोटी है, मतलब पता नहीं ना, बड़ी रात आई, बड़ा दिन आया, कौन से रस्म है, पूरी बना रहे, खीर बना रहे, खिचड़ा बना रहे, शरबत बना रहे, पता नहीं क्या क्या रस्म और रिवाज में हम चले गए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, शैतान हमको गलत कामों में मुब्तिला करता है बहन। फिर देखो अल्लाह की तकलीक है ना, अल्लाह की तकलीक जो है उसमें तब्दीली कैसे करते हैं ना, आज देख रहे हैं, आज हमारे बच्चे मेकअप करते हैं, ऐसा मेकअप की पहचान ही नहीं पाएंगे हम लोग कि भाई ये वही है। ऐसा इंसान हो जाता है। हाँ, मतलब हम लोग सोचेंगे अरे ये वही है क्या, मतलब पता नहीं वो कैसा हो जाता है। कैसे धोखे में हम सामने वाले को डाल रहे, इतने मतलब वो गोरे नहीं होते जितना कि वो गोरे बन के सामने आ जाते। ये जो धोखे का मेकअप से पता है बहनों, तलाक भी हो जाता है। सऊदी में एक निकाह ऐसा हुआ था, निकाह के बाद में ही सुबह में जब वो दुल्हन सामने आई ना, तो शौहर देख के डर गया। उसने कहा कि तू वही है जिसके साथ मैं घूमता फिरता था और मेरा निकाह हुआ?" बोले हाँ मैं वही हूँ। जब वो मुद हुई ना सुबह में, तो शौहर डर गया और फिर क्या किया, तलाक दे दिया, क्योंकि उसका चेहरा एकदम बदल गया। इतना बड़ा धोखा, सोचो ना, कि मर्द औरत की तरह, औरत मर्द की तरह रह रहे, है ना? हो रहा है क्या, नहीं हो रहा बहनों, अपने आप को बदल रहे, फिर एब्रो बनाना, ये सब क्या है। बोलने का मकसद ये है बहनों, यहाँ पर हमको अल्लाह ने जैसा बनाया वैसे ही रहो, उसको बदलो मत, इंशाल्लाह, है ना। तो हमको वैसे ही रहना बहनों। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे शैतान की चाल से भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। यहाँ पे देखो आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम शहुदा बनो मगर इंसाफ के साथ। हम लोग क्या करते हैं, मेरा बच्चा तो, है ना, हम लोग क्या करते हैं, देखो बच्चे जब कोई गलती करते हैं ना, तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। नहीं मेरा बच्चा तो मतलब बच्चे के मामले में झूठ बोलते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। नहीं बहनों, सच बोलो। अल्लाह कह रहा है कि शहुदा बनो मगर इंसाफ के साथ में, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करो।
और काफिरों से गहरी दोस्ती ना करो। हाय बाय, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, ठीक है, मगर ज्यादा उनके साथ दोस्ती करके उनसे मशवरा लेना ये सब गलत है। उनके तौर तरीकों को नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है। और गवाही जब भी देंगे तो सच के साथ देंगे इंशाल्लाह, और सच बोलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमको क्या बनना है बहनों, शहुदा बनना है। तो कैसे बनना है वो भी अल्लाह ने हमको बता दिया। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला यहाँ पे बताते हैं मुनाफिकीन। मुनाफिकीन की निशानी अल्लाह ने हमको बता दी। बोलते हैं ना कि देखो जो हम जो औरतें हैं ना, हम लोग है ना, देखो नमाज पढ़ते, रोजा रख लेते, हज करते, सब अच्छे काम करते, कुरान भी पढ़ते, मगर हम हमारी जिंदगी को हम लोग नहीं बदलते। हमारा किबला जो है वो बदलेगा बहनों, बदलेगा। कुरान से जुड़ोगे ना, हमारा डायरेक्शन बदल जाएगा। मुनाफिकीन की निशानी के जो बोलते हैं ना, देखो मुनाफिकीन की जो निशानी है ना वो क्या है, नमाज में सुस्ती काहिली। अब मुझे और आपको देखना है कि भाई मैं नमाज में सुस्ती करती हूँ कि काहिली करती हूँ। फिर नमाज के अंदर रियाकारी, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो इससे भी हमको क्या करना है, बचना है बहन। अल्लाह ताला खुद ही बता रहा ना कि वो धोखा देते हैं अल्लाह को। वो लोग सोचते हैं कि वो धोखा दे रहे अल्लाह को, लेकिन वो खुद ही क्या है, अपने आप को धोखा दे रहे। वो खुद ही क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना। खड़े होते हैं, लेकिन कैसे खड़े होते हैं, अल्लाह के सामने सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। तब मुझे और आपको देखना है कि भाई ये जो मेरा खड़ना है, ये सुस्ती के साथ है कि मैं वाकई में, एक मोमिन जो होते चुस्त होता है ना, अल्लाह के सामने एकदम साबित कदम खड़े रहते सही से, सुस्ती के साथ नहीं, एकदम बेजानी से नमाज नहीं पढ़ना। वो अल्लाह को याद भी करते हैं पर कम याद करते हैं। तो मुझे और आपको सोचना है कि मैं अल्लाह को कितना याद करती हूँ। हम ऐसे ना बने। हम कैसे बनेंगे, हम रियाकारी से बचेंगे, हम अल्लाह को बहुत याद करेंगे, सुस्ती और काहिली से बचेंगे। यहाँ के वहाँ मतलब है ना, यहाँ का वहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ का वहाँ भी नहीं लगाना। दुनिया वालों को देखकर दुनियादार बन जाते, दीनदार को देखकर दीनदार बन जाते। तो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं करना, यहाँ का वहाँ का नहीं होना है। जैसे कि इस्तेमा में गए तो बुरखा पहन लिए, शादियों में गए तो बुरखा छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है। हम दीन पर, शरीयत पर पूरे के पूरे आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और काफिरों को, मुशरिकों को अपना बेहतरीन दोस्त नहीं बनाएंगे, है ना। दोस्त बनाओ, मना नहीं है, मगर बेहतरीन दोस्त बनाने के बनाना नहीं है। उनके तौर तरीके पर हमको चलना नहीं है। पूरे पारे का खुलासा देखो ना बहनों, अल्लाह ताला हमको बता रहे ना यहाँ पे। ये मुनाफिकिन की निशानी थी। एक मोमिन क्या करता है बहनों, मोमिन को क्या करना है, मुनाफिकिन के बारे में बता के अल्लाह बताते हैं कि एक मोमिन जो होता है, आज हम लोग को पहले क्या करें, तौबा करेंगे, है ना, हमारे तमाम गुनाहों की माफी, और अल्लाह ताला हमको क्या कर देगा, माफ भी कर देगा। देखो ना, आज अल्लाह ने हमारी आंखें कितनी खोल दी ना कि या अल्लाह पहले तो हम क्या करेंगे, तौबा करेंगे, या अल्लाह हमारी इस्लाह करेंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे, कुरान और हदीस पर चलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अपने दीन को हम क्या करेंगे, खालिस कर देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना। क्योंकि देखो सच्ची तौबा करना जरूरी है, इस्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, थाम ले, और दिल को खालिस कर ले। ये मोमिन की सिफत है बेटा। हमको हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना। शैतान को अल्लाह ने क्या कहा, तू सबको बहका सकता है सिवाय मेरे उन बंदे के जो क्या है, शुक्रगुजार है। तो हमको हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार बनना ना सिर्फ दिल से। शुक्र कैसे करना है, दिल से करना है, जबान से करना है, और अमाल से करना है ना। यानी दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जबान से अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो ये दो बोलते हैं ना, दोनों हम लोग लेकर चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पढ़ते रहे, लेकिन हम हमारे अमाल से भी हम क्या करेंगे, करके बताएंगे, अच्छे अमाल करेंगे, जो अल्लाह ने कहा ना वो करेंगे, और जो कामों से अल्लाह ने रुकने के लिए कहा है हम वहां पे रुक जाएंगे। तो ये भी क्या है बहनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद में देखो बहनों, सूर्य निसा में यहाँ पे आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का जो है हमको क्या करना है, जो अल्लाह ने हमको दुआ बताया है ना, उसको भी यहाँ पर मैं लाई हूँ, इसका तर्जुमा मैं पढ़ लेती हूँ कि ये दुआ है बहनों, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे रब निकाल दे हमें इस बस्ती से, जिन जिन बस्ती से जिनके लोग जालिम हो गए।
बना दे तेरे तरफ से हमारे लिए हिमायती, और बना दे तेरे तरफ से हमारे लिए मददगार। यानी कि यहाँ पर हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, ये जो हमारे यहाँ की जो बस्ती है ना, यहाँ के रहने वाले हैं, हाँ, हम पर जुल्म कर रहे हैं, या अल्लाह तू हमें तेरे तरफ से क्या दे, हिमायती दे, जो हमारे मददगार है, जो हमारी मदद करे। या अल्लाह जो कोई या अल्लाह कोई ऐसा जो हमारी मदद करे। आमीन आमीन आमीन, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहनों देखो, ये जो दुआ भी यहाँ पे हो गई अल्लाह के फजलो करम से, और ये पूरा पारा जो है वो मुकम्मल भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है ना। हमको जो है, हमारा जो माशिरा है, हमारी जो सोसाइटी है ना, उसको भी हमको हिफाजत में रखना है। अगर औरत जो है वो पाक दामन रहेगी, नेक रहेगी, सालेहा रहेगी ना, जैसे देखो मरियम अली सलाम ने, हमने देखे ना, उनके बारे में भी हम लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं ना। तो उसी तरह हमको भी कैसा रहना है बहनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पाक दामन रहना, पर्दा करते रहे अल्लाह के फजलो करम से। अगर हम लोग कोई भी बोलते ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा मतलब खुफिया रिश्ता हमको बिल्कुल नहीं रखना। शादी होने के बाद भी ऐसी गलत दोस्ती, छुप छुप के चैटिंग करना, ये सब बिल्कुल नहीं करना। हमारे सोसाइटी को हमको कैसा पाक साफ रखना, अल्लाह से दुआ दुआ करते रहना है बहन, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना, अल्लाह से हम बोलते हैं ना, हर चीज की क्या करेंगे, इंशाल्लाह दुआ मांगेंगे, अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगेंगे, हमारी सोसाइटी की हिफाजत, निकाह को हमको आम करना है ना। आखिर में एक बात कहना चाहूंगी बहनों, जो बोलते बोलते हैं जैसे खुश बख्त लोग होते हैं ना, खुद खुश बदबख्ती की चार अलामत होती, यानी कि एक इंसान लकी होता है ना, एक इंसान लकी होता है ना, खुश किस्मत होता है जो, उसकी चार अलामत होती। उसको एक नेक बीवी अल्हम्दुलिल्लाह मिलती, फिर शौहर लकी होना चाहिए, दूसरा बोलते हैं कि खुला घर यानी अच्छा घर होना चाहिए, और तेरा अच्छा हम साया यानी कि पड़ोसी भी अच्छा होना चाहिए। अगर पड़ोसी खराब रहते हैं तो कितना रहना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है ना। तो हमारी और उसके बाद में जो सवारी भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब चार, चाहे देखो, ये जो चार बातें हैं ना, वो चीज होना चाहिए इंसान के अंदर, तो वो बोलते हैं ना खुशकिस्मत लकी इंसान है। अगर सवारी है तो उसकी सवारी कैसी हो, जैसे कि कार हो, साइकिल हो, बाइक हो, जो भी हो, अच्छी रहे। तो ये चार अलामतें जो खुशकिस्मत लोग होते हैं ना, उनके लिए ये चार चीजें उसको मिल जाए तो वो क्या है, वो लकी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो पांचवा पारा जो मुकम्मल हुआ, मतलब कि अल्लाह ने जितना चाहा मैंने उतना ही बताई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और अल्लाह के फजलो करम से जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। अल्लाह ताला आप सबको भी जजाए खैर दे बहनों। ये पूरा पारा तो हमने यहाँ नहीं बता पाई हूँ मैं, उसका एक खुलासा ही हुआ है। अल्लाह हमें तौफीक दे, हिदायत दे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पर जो हमने बैठे हैं, वक्त लगाए है, इसको अल्लाह कबूल करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, अल्लाह से दुआ करेंगे, इसमें जो भी अच्छी बातें हैं वो अल्लाह की तरफ से थी, और जो भी गलती कोताही वो मेरे तरफ से थी। मैं अल्लाह से इसकी माफ़ी मांगती हूँ, और आप सबसे भी बहनों माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह ताला हमको इस बात पर चलने वाला बना दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहनों बहुत अल्लाह से दुआएं करेंगे ना। देखो ना, ये पारा जो हम हमारा चल रहा है, तो हमको पता चलता है ना कि जो माहौल आज के हिसाब से जो माहौल चल रहा है, बराबर वही माहौल सोचो 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह ने बता दी, और आज के दौर के हिसाब से बराबर वो जो है ना कनेक्शन उसका कैसे जुड़ जाता है ना। इंशाल्लाह तो हम माफी मांगेंगे बहनों, अल्लाह से तलब करेंगे, जो भी इल्म अल्लाह ने हमको सिखाए है, अल्लाह ताला उस पे हमको अमल करने वाला बना दे। आमीन आमीन। जो भी टूटा फूटा है ना, हम सीखे हैं, हम सीख के देखो दाई, अल्लाह ने हमको ये दाई की सिफत भी बता दी, दाई के रास्ते पे हमको चलना है, दावत का काम करना है। तो जो भी हम टूटा फूटा सीखे हैं ना, हम इसको फैलाएंगे, है ना। अच्छी अच्छी बातें जो भी सुने हैं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इस पैगाम को आप फैलाओ, है ना। हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास के लिंक को, रिकॉर्डिंग को, इसको आम करो, पूरी सोसाइटी में सबको पता चले निकाह कितना आसान है, शरीयत कितना आसान है ना। और हमारी सोसाइटी कितनी पाक साफ है, और हमारी सोसाइटी कैसी पाक साफ हो जानी चाहिए, ये सब लोगों को पता होना चाहिए बहनों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप लोग इसको फैलाओगे, लोगों तक ये पैगाम को पहुंचाएंगे, तो वो फिर आएंगे, अरे इसमें तो सिर्फ खुलासा हुआ एक पारे का, एक एक आयत में तो अल्लाह ने औरतों के हक को कितना बताया है, तो मैं तो इसको जानूंगी, मैं तो मुझे इसको जानना है, मैं तो ये सीखूंगी इंशाल्लाह ना। अगर एक बहन भी आके जुड़ जाए, और जिसके भी जरिए से, तो उसका पूरा सवाब आपको मिलेगा बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं दुआ पढ़ा देती हूँ यहाँ पे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता
نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ كثيرا كثيرا جزاک اللہ خیر۔